Hello dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and you can see in front of your screen we are basically what we are trying to give you quality level education of quota. मतलब जो भी हम लोग कोटा में पढ़ा रहे हैं वही सब कुछ हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आए हैं. That you can see very well. So these are the courses children which we are providing you lectures on. So that is 6 to 8 Olympiads. Then NTSC, NSC, JS, PRM, 6 to 10 school level examinations. So basically हम लोग ये सब कुछ cover up कर रहे हैं children. And important part is कि we are teaching from the basic. मतलब basic से start करके और हम लोग जो Olympiad level है वहाँ तक आप लोगों को like पढ़ा रहे हैं. Right, so आज का जो lecture है that is on NMTC primary and that is for 5th and 6th standard and like lectures we have completed almost 5 chapters. 5 chapters हम लोग complete कर चुके हैं. This is the last chapter that is miscellaneous and इसके अंदर हम लोग different चीज़ें पढ़ रहे होंगे. Right, so why it is called miscellaneous? Because we'll be studying different things. So like calendar. आज का जो chapter होगा that will be on calendar. Like lecture, like today's lecture would be on calendar और then उसके बाद हम लोग clock पढ़ेंगे and then some figure related problems, right? So there is combination of many types of questions. इसीलिए हम लोग इसे जिस chapter को overall miscellaneous बोल रहे हैं. Right children, so before starting this is a super amazing team जो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको quality level education देने के लिए and हम सबके lectures available हैं on this YouTube channel of ours that is Talking Textbook. So अगर आप लोगों ने अभी तक देखना नहीं start किया है so please kindly go through it. देखिए उन सब lectures को appreciate करिए. And this is a brief about me children. I'm taking NMTC primary and sub junior as well as 6 to 8 mathematics and like this is our telegram channel children. According to your class please join it here. आपकी क्लास के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर लो. जितना भी लाइक जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है क्लासेस से रिलेटेड वो सब आपको यहाँ पर मिलेगी. जो भी लेक्चर्स होंगे उनका इन्फॉर्मेशन सब कुछ अपडेटेड आप यहाँ पर रहेंगे. लाइक इफ़ यू जॉइन दीज अकॉर्डिंग टू योर क्लास ऑफ कोर्स तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलता रहेगा चिल्ड्रन. राइट, this is our website children, www.talkingtextbooks.in. so if you haven't joined it up till yet then please join it. और उससे होगा ये चिल्ड्रन कि बेसिकली जो हमारे पैकेजेस हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो यू कैन सी इट है यहाँ पर 9000 का हाईएस्ट पैकेज है. अगेन व्हेन यू यूज़ माय कोड AV लाइव कोड यूज़ करेंगे तो 30% का डिस्काउंट हो जाएगा. एंड उससे ये होगा कि दिस वुड बी ऑफ 6300, सेकेंड पैकेज वुड बी ऑफ 2450. अगैन 6300 इज़ अ कम्प्लीट पैकेज जिसमें आपको स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज यू विल बी गेटिंग फॉर द होल ईयर. एंड उसके अंदर बाकी जो चीज़ें इंक्लूडेड है दैट यू कैन सी दीज ऑल आर इंक्लूसिव. Important part here is children कि if you do not require the study material then you can opt for the test series package as well जो पूरे year long के लिए होगा. And again bi-weekly quizzes as you can see are free and also of Olympiad level. So if you haven't started giving them then please do that children. And yes, on the right side you can see the different payment modes. Still कुछ भी आपको queries रह जाती हैं इस सबसे related like how to buy the package और किस तरह से bi-weekly quizzes attempt करने हैं या और भी कोई भी चीज़ तो you can call on this number which is written down here 9549041111. Right children, let's start with our promise and then we'll be starting with the calendar chapter today. So prerequisite of calendar is nothing but like you should be knowing certain basic things. वो basic things क्या है वैसे तो मैं सब कुछ पढ़ाऊँगी ही सही इन lectures के अंदर but still let's see चलो. So today's lecture is on calendar. ठीक है. So आज हम लोग question थोड़े कम करेंगे और थोड़ा सा theory part ज़्यादा होगा. आज के लेक्चर में क्वेश्चंस हम लोग प्रॉबेबली शायद नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैलेंडर के बारे में जिन जिन को पता है वेरी गुड.
जिन्हें नहीं पता है तो वो इस पर ध्यान दे लें. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ like years, right? One is known as ordinary year. One is known as a ordinary year and second is known as a leap year, right? So ordinary year कैसे पता लगता है या leap year कोई भी है वो किस तरह से पता लगता है? Let me take an example. See, if I took an example of 2020, अभी जो साल चल रहा है, right? So 2020 अगर मैंने एक example लिया and if I am able to divide it by 4, right? अगर वो completely divisible है 4 से, so this is 4 5s are 20 and 4 5s are 20, right? So this is completely divisible. This year 2020 is completely divisible by 4, so this is a leap year. This becomes a leap year. 2020 becomes a leap year. If I talk about 216, right? 2016. So this year was also a leap year, right? Because it was divisible by 4. Let me talk about 1942. Is this divisible by 4? How can I know this? अब कोई भी year या कोई भी नंबर, सबसे पहली बात तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये मुझे कैसे पता लगेगा? ऑब्वियसली हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि लास्ट के दो नंबर्स चेक कर लो, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर डिविजिबल है 4 से, राइट? वेरी सिंपल. तो अब मैं क्या करती हूँ, 42 को देख लेती हूँ. 42 डिविजिबल होता है क्या 4 से? नहीं होता है. इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4. तो मैं क्या कह सकती हूँ, नॉट डिविजिबल बाय 4, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 1942 इज़ अ ऑर्डिनरी ईयर. 1942 एक ऑर्डिनरी ईयर है, राइट? इसी तरह से और एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन. फॉर एग्जाम्पल 2019, राइट? अब 2019 में लास्ट देखा अपन ने, ये भी नॉट डिविजिबल है, तो ये भी ऑर्डिनरी ईयर हुआ, राइट? ये भी क्या हुआ, ऑर्डिनरी ईयर हुआ. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ 2000, लेट्स से 1972. Let us take an example of 1972. Now what is 1972? 1972 में ये क्या है, लास्ट के दो नंबर 72 है. Is it divisible by 4, children? Is it divisible by 4? Have you done it? किया आप लोगों ने? तो 72 इज डिविजिबल बाय 4, राइट? 72 डिविजिबल है 4 से, यानी कि ये कंप्लीट नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 4 से. दैट मीन्स दिस इज अ लीप ईयर. क्लियर? तो हर चौथा साल जो रहता है, जैसे मान लो 0001 से 0004, अब ये वाला जो साल होगा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा, राइट? तो वैसे हर चौथा साल लीप ईयर होता है, या आप कह सकते हैं नंबर और ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4. ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज नोन एज व्हाट, लीप ईयर. अब खास बात क्या है लीप ईयर की, वो हम देखते हैं. इज नोन एज लीप ईयर. ठीक है, अब इसके अंदर खास बात क्या है वो हम देखते हैं. देखो, वैसे वन ईयर में हम लोग क्या मानते हैं, लाइक फॉर आवर इजी कैलकुलेशन हम लोग क्या मानते हैं कि 365 डेज होते हैं. 365 डेज, ऑब्वियसली कुछ ऊपर नीचे भी होता है, पॉइंट समथिंग भी होता है, बट हम लोग अपनी ईज के लिए, फॉर आवर इजी कैलकुलेशन हम लोग क्या मानते हैं, 365 डेज. ठीक है, अब किसी एक ईयर में 365 डेज हैं, बट ये किसके लिए हुआ, ऑर्डिनरी ईयर के लिए. ठीक है, ये किसके लिए हुआ, ऑर्डिनरी ईयर के लिए हुआ. अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, तो उसमें वन ईयर के अंदर कितने डेज होंगे, 366 डेज होंगे, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा, राइट? यही डिफरेंस है कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है. तो ये एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ दिखता है, देखो
फेब्रुवरी में कितने डेज होते हैं? ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज होते हैं। पर अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो फेब्रुवरी में ये जो एक एक्स्ट्रा दिन आ रहा है ना, ये कहाँ आ रहा है? ये फेब्रुवरी के अंदर आ रहा है। मतलब फेब्रुवरी में होते हैं 29 डेज। यानी कि अगर किसी बच्चे का बर्थडे 29 फेब को आ रहा है तो वो हर 4 साल में अपना बर्थडे मनाएगा, राइट? ही वोंट हैव द यू नो द लाइक फैसिलिटी, या ये कह लो कि ही वोंट हैव द प्रिविलेज टू सेलिब्रेट हिज और हर बर्थडे ऑन एवरी ईयर, राइट? वो सिर्फ एवरी 4 ईयर में अपना सेलिब्रेट कर पाएंगे बर्थडे, राइट? सो दिस इज वन थिंग। नाउ अगेन अंडरस्टैंड दिस चिल्ड्रन, 365 डेज के अंदर कितने वीक्स होते हैं प्लस कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? एक्स्ट्रा डेज होते हैं वीक के अलावा कितने होते हैं? सो हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सी 365 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि देखो वन वीक के अंदर कितने डेज होते हैं भाई? 7 डेज होते हैं। वन वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, राइट? तो 365 डेज को अगर मुझे जानना है कि कितने वीक्स हैं तो मैं क्या करूंगी? 7 से डिवाइड कर दूंगी, राइट? 7 से डिवाइड कर दूंगी। अब ये कौन से होते हैं डेज वो पता है ना? 7 डेज कौन से होते हैं? संडे, मंडे, किसी को नहीं पता हो तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है? तो अब 7 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? 52, राइट? 52 कंप्लीटली डिविजिबल है, राइट? होल नंबर पार्ट लूंगी मैं, कंप्लीटली डिविजिबल तो होगा नहीं। होल नंबर पार्ट लूंगी मैं, होल नंबर पार्ट लेकर के मतलब वो कितना हो गया? 52 वीक्स तो हो गए, प्लस 1 रिमाइंडर बच रहा है। 1 रिमाइंडर जो बच रहा है ना, दैट इज 1 डे जो एक्स्ट्रा, दिस इज नोन एज ऑड डे। समझना, ध्यान से समझना बेटा इस बात को कि ऑड डे कौन सा होता है? जो वीक के अंदर नहीं आ रहा है ना, जो वीक के अंदर नहीं आ रहा है, दैट इज द ऑड डे। प्लीज अंडरस्टैंड। तो मैं क्या बोलूंगी? एक्स्ट्रा डे। लेट मी राइट इट विथ, सो एक्स्ट्रा डे फ्रॉम अ वीक is known as odd day, ठीक है? मतलब एक पूरा वीक कंप्लीट हो गया, संडे से लेकर सैटरडे तक जब एक वीक पूरा कंप्लीट हो गया 7 दिन का, फिर उसके बाद चाहे 1 दिन बच रहा है या 2 दिन बच रहे हैं, 3 दिन बच रहे हैं, जो भी बच रहा है उसको हम बोलेंगे क्या? ऑड डे बोलेंगे, राइट? उसको हम बोलेंगे ऑड डे। सो एक्स्ट्रा डे फ्रॉम अ वीक इज नोन एज ऑड डे। सो ये तो बात हुई ऑर्डिनरी ईयर की, राइट? दिस इज फॉर ऑर्डिनरी ईयर, दिस इज फॉर ऑर्डिनरी ईयर। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो इफ आई टॉक अबाउट लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? 366। अब इसका अगर मुझे वीक्स प्लस ऑड डेज फाइंड करने हैं, मैं डायरेक्ट ऑड डे लिख रही हूँ ताकि आपको अब याद रहे कि ऑड डे का क्या मीनिंग है, कि ऑड डे मैं क्यों लिख रही हूँ, राइट? सो इसको मैं क्या करूँगी? 366 डेज को मैं क्या करूँगी? आई डिवाइडेड, सिंपली डिवाइडेड बाय 7। कितना मिल जाएगा मुझे? कंप्लीटली डिवाइड करूँगी तो 52 तो मिलेगा ही। तो 52 वीक्स प्लस एक्स्ट्रा कितना बचा? 2 डेज, 2 रिमाइंडर बचा। तो ये जो 2 है ना मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 2 है ना, ये क्या है? ऑड डे, 2 ऑड डेज, राइट? तो लीप ईयर के अंदर ध्यान रखने की बात क्या है कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर ऑड डे कितना हुआ? 1। और लीप ईयर के अंदर ऑड डे कितने हुआ? 2, राइट? आया समझ में? अभी अपन ने देखा, देखो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 1 ऑड डे है और लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे है। समझ गए? इतनी बात समझ गए? चलो अपन 1-2 एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड। सो अगर मैंने एग्जाम्पल लिया आपका
216, ठीक है। मैंने अगर एग्जाम्पल लिया 216, अब देखो ये लीप है या लेट अस से लीप है या ऑर्डिनरी है, तो मैं क्या करूँगी, लास्ट के दो नंबर्स देख लूँगी। लास्ट के दो नंबर्स मैंने देखे, सो इट इज़ 16 एंड डिविजिबल बाय 4. इट इज़ डिविजिबल बाय 4 मीन्स दिस इज़ अ लीप ईयर। लीप ईयर है तो मुझे पता लग गया कि इट हैज़ 52 वीक्स प्लस 2 odd days, 52 वीक्स प्लस 2 odd days, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। लेट्स से मैंने लिया 1947, राइट। अब 1947 के अंदर क्या हो रहा है, 1947 में वही मैंने देखा कि भाई लीप है या नहीं है। लास्ट के दो नंबर देखे, 47 नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। देखो लीप ईयर अगर मुझे लिखना होगा तो मैं LP इस तरह से शॉर्ट में लिखूंगी, और ऑर्डिनरी ईयर अगर है तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। तो याद रख लेना। अब ऑर्डिनरी ईयर है, इसका मतलब इसमें 52 तो वीक्स हो गए प्लस 1 ऑड डे हो गया, राइट। और एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके 1945, देन 1623 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इसके भी बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, राइट। तो ये तो हमें पता लगा कि भाई अगर मुझे लीप ईयर पता करना है किसी भी उसके अंदर, तो मैं इस तरह से पता कर सकती हूँ कि जो लास्ट के दो डिजिट हैं उसको डिवाइड करके देख लिया, भाई डिविजिबल है 4 से तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट में अपन देखते हैं। नेक्स्ट अगर मेरे पास लेट्स नॉट टेक इट एज एग्जाम्पल, क्योंकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाह रही हूँ आपको यहाँ पर। अगर मान लो मैंने लिया लेट्स से 2000, राइट, मैंने लिया 2000, या लेट मी टेक समथिंग एल्स, 2000 की जगह लेट मी टेक लेट्स से 1800, ठीक है। मैंने लिया मान लो 1800। अब इसको डिवाइड करना है अपने को। अब इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो क्या होगा भाई, 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर मैंने लिया लेट्स से 1800 को, अब क्या देख रही थी मैं कि लास्ट के दो डिजिट मुझे क्या करने थे, 0 से डिवाइड करते, या इसकी जगह कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी थिंक, चलो ठीक है, लेट इट बी। सो 1800 अगर मैंने लिया, अब इसमें लास्ट दो डिजिट अगर मुझे चेक करने हैं कि भाई ये लीप ईयर है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, आई शुड डिवाइड इट बाय, मैंने अभी तक क्या बताया था कि भाई लास्ट के दो डिजिट को डिवाइड कर लो 4 से। अब यहाँ पे तो 0 0 आ रहे हैं, तो इनको कैसे डिवाइड करोगे 4 से। सो अंडरस्टैंड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो अपने को समझने की ज़रूरत है, और वो क्या है यहाँ पर कि जो भी सेंचुरी ईयर होंगे ना, जो भी सेंचुरी ईयर्स हैं, सेंचुरी ईयर्स मतलब कि जैसे हुआ 100, 200, 300, 1400, 1900, 2000, 1100, समझ गए। ये जो सेंचुरी ईयर्स है, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। तो इसमें आप लोगों को कैसे चेक करना है कि कोई भी जो नंबर है, मतलब कोई भी जो ईयर है वो लीप है या नहीं, तो यू आर गोइंग टू डिवाइड बाय, अंडरस्टैंड, मैं अलग पेन से इसलिए लिख रही हूँ ताकि याद रहे, डिवाइड बाय 400, 400 से डिवाइड करना है, ना कि 4 से, राइट। तो मैं क्या करूँगी, 400 से डिवाइड करूँगी। अब अगर मुझे देखना है 100 डिवाइडेड बाय 400, कैंसिल हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर निकला। देन 300 डिवाइडेड बाय 400, राइट, इसको देखो ये डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, ये भी ऑर्डिनरी ईयर निकला। 1400 अपॉन 400, इसको डिवाइड किया, क्या ये डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, नहीं।
ये भी क्या निकला, ऑर्डिनरी ईयर निकला। तो इस तरह से हमको क्या करना होता है, चेक करना होता है। प्लीज रिमेंबर, अगर कोई भी नॉर्मल आपको डेट्स दे रखी है, नॉर्मल ईयर्स दे रखे हैं, तो उसमें आप डिविजिबल बाय 4 करोगे, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी तक करते हुए आ रहे हैं, राइट। डिवाइड बाय 4 किया तो मुझे पता लग गया। बट अगर सेंचुरी ईयर्स की बात हो रही है, सेंचुरी ईयर्स यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, 100, 200, 1000, इस तरह से चीज़ें अगर आ रही हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, इसको किससे डिवाइड करूँगी, 400 से डिवाइड करूँगी, राइट। तो अपन देखते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल करके देखते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है, मान लो मैंने 2000 दिया आपको, अब ये क्या है, सेंचुरी ईयर है, दिस इज अ सेंचुरी ईयर, राइट। तो अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी, आई डिवाइड इट बाय 400 एंड नॉट 4। सो अब मैंने डिवाइड किया, अब मैंने इसको डिवाइड किया, सो दिस इज नाउ कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। इसका मतलब 2000 इज अ लीप ईयर, 2000 इज अ लीप ईयर, राइट। अब एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं अपन। लेट अस से आई टुक 1800, ठीक है। अब देखो समझना, 1800 को डिवाइड करो 4 से, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। पर अब कंप्लीटली अगर 4 से डिविजिबल है, मतलब क्या वो लीप ईयर है? नहीं, मैं इसे चेक करूंगी 400 से, बिकॉज इट इज अ सेंचुरी ईयर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या 18 और 4 कंप्लीटली डिविजिबल है? इज 18 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4? नो, दैट मीन्स 1800 इज एन ऑर्डिनरी ईयर। आया समझ में ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से हम लोग इन लाइक डेट्स को चेक कर रहे होते हैं कि कोई भी जो ईयर है वो ऑर्डिनरी है या लीप ईयर है, राइट। एंड एज वेल एज फॉर सेंचुरी ईयर एज वेल, राइट चिल्ड्रन। सो लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स। अब देखो ना, लेट्स टॉक अबाउट ऑड डेज। लेट्स टॉक अबाउट ऑड डेज। अब देखो, अगर मैं बात करूं संडे की, तो अगर मेरे पास लास्ट में 0 ऑड डे आ रहे हैं, 0 ऑड डे आ रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सा दिन है? संडे है। अगर मेरे पास मंडे आ रहा है, देन इट इज व्हाट? 1 ऑड डे। अगर ट्यूसडे या इस तरह से, लेट मी राइट इट लाइक दिस, सी, अगर मुझे ऑड डेज निकालना है, राइट, अगर मुझे ऑड डेज निकालना है कि भाई कौन सा है, अगर मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता लगा कि 0 आ रहा है एंड में, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और 0 ऑड डे आ रहा है, इसका मतलब उस दिन क्या है? संडे है। डिवाइड किया मतलब वीक्स में डिवाइड किया मैंने, किसी भी, मुझे नंबर ऑफ डेज पता लग गए। अब नंबर ऑफ डेज को मुझे पता करना है कि भाई वीक कितने आ रहे हैं उसके अंदर, कंप्लीट वीक, और ऑड डेज कितने आ रहे हैं। तो मैं ऑब्वियसली 7 से डिवाइड करूंगी। 7 से डिवाइड करने के बाद अगर मेरे पास ऑड डेज आ रहे हैं 1, रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास 1, तो इसका मतलब उस दिन क्या हुआ? मंडे। अगर फिर से मैंने डिवाइड किया, ऑड डेज मेरे पास बच गए, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ऑड डेज मेरे पास 2 बच गए, दैट मीन्स इट इज ट्यूसडे। अगर 3 डेज बच रहे हैं, 3 ऑड डेज बच रहे हैं, मतलब दैट इज वेंसडे। अगर 4 ऑड डेज बच रहे हैं, देन इट इज थर्सडे। 5 ऑड डेज बच रहे हैं तो फ्राइडे। 6 ऑड डेज बच रहे हैं तो सैटरडे। क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? तो अब वो कैसे होगा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल्स लेकर के बताती हूँ। लेट्स से अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं इस तरह से। ओके, सो लेट्स से कि मुझे मेरे पास आंसर आ रहा है 10 डेज का,
ठीक है। अब इन 10 डेज को मुझे वीक्स में, मतलब इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज पता करने हैं। फाइंड नंबर ऑफ ऑड डेज, फाइंड नंबर ऑफ ऑड डेज। तो मैं क्या करूंगी भाई, 10 डेज है मेरे पास, तो इसका मतलब मैं इसको 10 को 7 से डिवाइड कर दूंगी। तो मेरे पास कितने टाइम्स जाएगा ये, 1 टाइम। देखो कैसे, ऑब्वियसली कैसे करना होता है, 7 से 10 को डिवाइड किया, 1 टाइम जाएगा, राइट, एंड 3 रिमाइंडर बच गया, राइट। तो 1 वीक हो गया, प्लस डेज कितने हैं, 3 ऑड डेज बच गए, 3 रिमाइंडर बच गया, 3 ऑड डेज बच गए, मतलब 1 वीक तो कंप्लीट हुआ ही हुआ, बट उसके बाद 3 और दिन बच गए। 3 और दिन बच गए मतलब कि क्या है, 3 ऑड डेज का क्या मतलब है, 3 ऑड डेज का मतलब कि उस दिन क्या है, वेडनेसडे। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ मैं। लेट्स से मैंने लिया एग्जाम्पल 21 डेज का, राइट। अब इसमें पता करो, 21 डेज में पता करो कि भाई ऑड डेज कितने हैं। तो मैं क्या करूंगी, 21/7, 3 वीक्स हो गए, 3 वीक्स कंप्लीट हो गए, प्लस 0 ऑड डे, एक भी दिन नहीं है। रिमाइंडर कितना था, 0, रिमाइंडर हुआ, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा मेरे पास 0, इसका मतलब 0 ऑड डे, यानी कि उस दिन कौन सा दिन होगा, संडे। कौन सा दिन होगा, संडे होगा। और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, 56 डेज, 56 डेज है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से, 7 से डिवाइड किया, 8 वीक्स, 8 वीक्स प्लस 0 ऑड डे। अब 0 ऑड डे का मतलब क्या हुआ, यहां से मुझे पता लगा क्या है, संडे। एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, लास्ट। लेट्स से फॉर 71 डेज। अब 71 डेज है, 7 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिला, 10 वीक्स मिल गए, 10 वीक्स मिल गए प्लस 1 ऑड डे। 1 ऑड डे म्हणजे 1 ऑड डे का मतलब उस दिन क्या है, मंडे। क्लियर? तो ये चार्ट हमें पता होना चाहिए कि 0 के दिन संडे है, 1 के दिन मंडे है, 2 के दिन ट्यूसडे। दिस वी शुड मेमोराइज, ये मुझे पता होना चाहिए, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, मतलब मुझे तो है ही पता, पर आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि 0 के दिन संडे है और 1 2 3 4 इस तरह से सैटरडे तक है, राइट। ऐसा नहीं हो कि 0 के दिन मंडे कर दिया, 1 के दिन ट्यूसडे, 3 4 इस तरह से नहीं, जैसा दिया हुआ है वैसा ही हम उसे फाइंड करेंगे, राइट। ठीक है, आया समझ में कि ऑड डे कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन। अब अपन ऑड डेज फाइंड करते हैं इन ईयर्स, ठीक है। अब ऑड डेज हम फाइंड करते हैं ईयर्स के अंदर। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि अगर मैं 0001 से 0020, राइट, अगर मैं इन 20 ईयर्स, इन 20 ऑड डेज इन ईयर्स, ठीक है। तो अब मैं इन 20 ईयर्स में पता करना चाहती हूं कि कितने ऑड डेज होंगे, ठीक है। मुझे पता करना है कि 20 ईयर्स में ऑड डेज कितने हैं। तो मैं कैसे पता करूंगी, देखो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 से लेकर 20 तक में टोटल ईयर्स कितने हैं भाई, टोटल ईयर्स हैं 20। अब मुझे पता करना है कि इसमें से लीप ईयर कितने हैं, राइट। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ लीप ईयर्स। तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, 20/4। सो दिस विल बी 5। भाई 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करते 5 मेरे पास रिजल्टेंट आया, इसका मतलब 5 ईयर्स कितने हो गए, लीप ईयर हो गए। तो इन 20 सालों में से, बात समझना चिल्ड्रन बहुत ध्यान से, कि इन 20 सालों में, इन 20 ईयर्स के अंदर 5 ईयर्स मेरे लीप ईयर्स हैं, 5 साल मेरे लीप ईयर्स हैं। अब वो कौन से होंगे, ऑब्वियसली 0004, फिर 0008, फिर 008 के बाद फिर 12 एंड सो ऑन, राइट। तो 20 तक, 20 तक, 2020 तक मेरे पास ऐसे कितने आएंगे, 5 लीप ईयर्स आ जाएंगे, राइट। मेरे पास 5 लीप ईयर्स आ जाएंगे। बट
अब इसके बाद ऑर्डिनरी ईयर कितने बचे, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर कितने बचे, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर कितने बचे, ऑब्वियसली भाई टोटल 20 साल थे, उसमें से 5 साल अगर लीप ईयर है तो बचे हुए 15 साल क्या होंगे, ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, राइट। सो ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हो गए, 5 हो गए, सॉरी लीप ईयर 5 हो गए, ऑर्डिनरी ईयर 15 हो गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि कहाँ गया, देखो ऑर्डिनरी ईयर अगर है, ऑर्डिनरी ईयर अगर है तो उसके अंदर ऑड डे कितने होंगे, 1। ऑर्डिनरी ईयर अगर है तो उसके अंदर ऑड डे कितने होंगे, 1। लीप ईयर अगर है तो उसके अंदर ऑड डे कितने हुए थे, 2। रिमेंबर, ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑड डे कितने हुए, 1। लीप ईयर है तो ऑड डे कितने हुए, 2। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपन, देखो अब यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना इस चीज को कि मेरे पास लीप ईयर कितने हैं, 5 लीप ईयर्स, राइट, प्लस ऑर्डिनरी ईयर कितने, 15 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, राइट। तो अब 5 लीप ईयर का मतलब इसमें ऑर्डिनरी सॉरी ऑड डे कितने हो गए, इसके अंदर ऑड डे कितने हो गए भाई, एक लीप ईयर के अंदर अगर 2 ऑड डे होते हैं तो 5 लीप ईयर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों यूनिटरी मेथड लगाओ, कितने ऑड डे होंगे, 5 × 2 ऑड डे, यानी कि 10 ऑड डेज। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, देखो फिर से समझाती हूँ मैं कि मैंने क्या देखा था, एक लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डे आ रहे थे, 2 ऑड डे आ रहे थे, रिमेंबर 2 ऑड डे आ रहे थे, अभी समझाया मैंने। तो 1 लीप ईयर के अंदर अगर 2 ऑड डे आते हैं तो 5 लीप ईयर के अंदर कितने आएंगे, 5 × 2 यानी कि 10 ऑड डेज, सिंपल। और समझना, और ऑर्डिनरी ईयर के अंदर ऑड डे कितने आते हैं, देखो 1 ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 1 ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 1 ऑड डे आता है, 1 ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 1 ऑड डे आता है। तो 15 ऑर्डिनरी ईयर्स के अंदर कितने ऑड डे आएंगे बच्चों, 15 × 1 दैट इज 15 ऑड डेज, दैट इज 15 ऑड डेज। आया समझ में, राइट। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इनको प्लस, भाई 5 लीप ईयर के 10 ऑड डेज और 15 ऑर्डिनरी ईयर के 15 ऑड डेज, मुझे इसको प्लस करना है सिंपली। सो आई ऐड, देखो मैं तुम्हारे लिए दूसरा पेन यूज करूंगी दूसरे कलर का, ताकि तुमको ध्यान रहे। देखो तो अब 10 ऑड डेज इसके प्लस 15 ऑड डेज इसके कितने हो गए भाई, 25 डेज, 25 ऑड डेज। अब 25 को मैं डिवाइड कर लूंगी, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, कितना आया 25 ऑड डेज। 25 ऑड डेज का मतलब मैं इसको डिवाइड करूंगी 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 वीक्स, 3 कंप्लीटली, 7 3 जा 24, तो 3 वीक्स तो कंप्लीट आ गए, 21 सॉरी 7 3 जा 21, तो 3 वीक्स तो कंप्लीट आ गए, प्लस एक्स्ट्रा कितना बचा 4, 4 दिन एक्स्ट्रा बचे, रिमाइंडर कितना बचा 4, तो 4 ऑड डेज एक्स्ट्रा बचे। अब 4 ऑड डेज एक्स्ट्रा बचने का ये मतलब है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 4 ऑड डे का मतलब क्या हुआ कि 31 दिसंबर 0020 को, यानी कि जो लास्ट ईयर है उसके लास्ट डे पर, ऑब्वियसली ये जो 4 ऑड डेज है कंप्लीट 3 वीक हो जाएंगे, कंप्लीट 3 वीक होने के बाद एक्स्ट्रा क्या बचेगा, 4 ऑड डेज बचेंगे। 4 ऑड डेज बचने का ये मतलब है कि 31 दिसंबर 0020 मतलब 20 में कौन सा दिन होगा, 4 ऑड डेज का मतलब इट विल बी
Thursday. It will be Thursday. आई समझ में बात समझ में आई? एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Let us take one more example of the same manner, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. कितना टाइम है? We have time. So let us say अगर मैंने लिया चलो अगर मैंने लिया 001 से राइट. तो ये क्या है? 0001 से मान लो मैं लेती हूँ 000 या इसको ले लेते हैं अपन 40 तक. राइट, इसको अपन ले लेते हैं 40 तक. क्लियर? तो अब मुझे इनके बीच में पता करना है कि भाई नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं. कैसे फाइंड करूंगी मैं? देखो, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 40 है. नंबर ऑफ ईयर्स 40 हैं. तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ लीप ईयर मुझे फाइंड करना है. नंबर ऑफ लीप ईयर्स में कैसे फाइंड कर सकती हूँ मेरे बच्चों? 40/4 दैट इज 10. तो 10 मेरे पास लीप ईयर्स आ गए. राइट, अब मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स. नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हो गए? 40 - 10 दैट इज 30 ऑड ईयर्स हो गए. ठीक है, 30 कितने हो गए? ऑड ईयर्स हो गए. अब मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑड डेज. तो 10 तो मेरे पास लीप ईयर्स हैं और 30 मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर्स हैं. सिंपल, मैं बस इनके अब वो कैलकुलेट कर लूँगी जो मुझे करना है कैलकुलेट. सो 10 लीप ईयर्स मतलब कि इसके ऑड डेज कितने हुए? 10. तो लीप ईयर्स है इंटू 2. क्यों भाई? एक लीप ईयर में दो ऑड डेज होते हैं. 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं. तो 10 ईयर्स में 10 × 2 राइट, प्लस 30. तो 1 ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 1 ऑड डे होता है. तो 30 के अंदर 30 × 1. ठीक है, अब सिंपली जस्ट ऐड इट. 10 × 2 इज 20 प्लस 30 दैट गिव्स मी 50. अब बस 50 ऑड डेज आ गए. 50 ऑड डेज को अब मैं क्या करूँगी? वीक में कन्वर्ट, वीक और ऑड डेज में कन्वर्ट. मतलब 50 डिवाइडेड बाय 7 गिव्स मी हाउ मच? 7 × 7 = 49 राइट. तो 7 तो वीक हो गए, 7 वीक्स हो गए प्लस 1 ऑड डे हो गया. अब 1 ऑड डे म्हणजे 1 ऑड डे का मतलब दिस इज मंडे राइट. 1 ऑड डे का मतलब दिस इज मंडे. मंडे का मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 0040 मतलब 40वां जो साल होगा उसके 31 दिसंबर पे क्या होगा? मंडे होगा. आ रहा है समझ में? दिस विल बी व्हाट? मंडे. कॉपी कर लो इसको. क्लियर है चिल्ड्रन? Let us see same thing now. अब हम एक और चीज इसी के अंदर सेम चीज देखते हैं. सी, अब मैं देखूंगी 0 से 100 ईयर्स के लिए. ठीक है, अब मैं देखूंगी 0 से 100 ईयर्स के लिए. तो अब बहुत ध्यान से देखना चाहिए. देखो 0 से 99
प्लस 100th ईयर। ये जो 100th है ना, मतलब कि 0100, ये क्या है? सेंचुरी ईयर। ये क्या है? सेंचुरी ईयर है। तो इसको मैं अलग से कैलकुलेट करूंगी, इसको मैं इसके अंदर कैलकुलेट नहीं कर सकती, इसको मैं अलग से कैलकुलेट करूंगी, राइट। तो इसलिए मैंने 100th ईयर बाहर लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर 0 से 99 में 99 ईयर्स है टोटल, राइट। टोटल कितने हैं? 99 ईयर्स है। अब इसके अंदर देखो लीप ईयर कितने हुए? लीप ईयर कितने होंगे? ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी, 99 से 4 को डिवाइड कर दूंगी। 99 से अगर मैं 4 को डिवाइड करूंगी तो मुझे जो होल नंबर पार्ट है वो लेना होगा, दैट इज 4 2 ज़ा 8 एंड 1 16, राइट। तो 24 लीप ईयर्स। मैं होल नंबर पार्ट लूंगी चिल्ड्रन, जस्ट टेक द होल नंबर पार्ट, नॉट द डेसिमल पार्ट। सो 24 ईयर्स आर माय लीप ईयर्स, राइट। और रिमेनिंग कितने हो गए? रिमेनिंग 75 क्या हो गए? ऑर्डिनरी ईयर्स। रिमेनिंग ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हुए? ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हुए? 75, राइट। अब ये मुझे पता करना है 100 इज इट अ लीप ईयर और एन ऑर्डिनरी ईयर। तो मैं 100 को, क्योंकि सेंचुरी ईयर है इसलिए मैं इसे 400 से डिवाइड करूंगी, इसलिए इसे मैं 400 से डिवाइड करूंगी। नॉट डिविजिबल, इसका मतलब 100 क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है। दिस 100th ईयर इज ऑल्सो अ ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। मतलब कि मेरे पास 24 लीप ईयर्स हो गए, प्लस ऑर्डिनरी ईयर कितने हो गए? 75 प्लस ये वाला +1 हो जाएगा, तो यानी कि 76 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए। 76 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए, क्लियर। अब वही सेम बात है। अब देखो लीप ईयर कितने होते हैं? लीप ईयर के अंदर ऑर्डिनरी ईयर्स, लीप ईयर के अंदर ऑड डेज कितने होते हैं? लीप ईयर के अंदर ऑड डेज कितने होते हैं? 2। एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 के अंदर कितने होंगे? 24 × 2, राइट। और इसके अंदर ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज कितना होता है? 1 होता है। तो 76 के अंदर कितना होगा? 76 × 1। तो हाउ मच इज दिस गोइंग टू बी? 48 ऑड डेज तो यहाँ हो गए, प्लस दिस इज गोइंग टू बी 76। तो कितने हो गए ये? 8 and 10 and 4, 1 7 and 8 and 12, 124 ऑड डेज हो गए। 124 ऑड डेज हो गए। अब इससे मुझे क्या पता लगेगा? अगेन आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 7, तो 124 डिवाइड बाय 7, तो दिस गिव्स मी 1 7 and 17, so 17 weeks plus 5 odd day, 17 weeks plus 5 odd day। तो 5 का मतलब क्या हुआ? 5 means it is Friday, it is what? Friday। मतलब 31 दिसंबर 0100 को क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? कॉपी कर लो इसको। सो चिल्ड्रन आज के लिए इतना ही, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टुडे। सो इसको थोड़ा सा समझना, प्रैक्टिस करना, और ऑर्डिनरी डेज वगैरह जो ऑड डेज होते हैं, सॉरी नॉट ऑर्डिनरी डेज, ऑड डेज जो होते हैं वो और नंबर्स के साथ निकालने की कोशिश करना, एंड देन वील ग्रेजुअली मूव टू द next topic in this calendar itself, right? So this is it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos.
and remember to use my code AVLive to get 30% of discount. In the next lecture as well हम लोग कैलेंडर ही पढ़ेंगे, इसका आगे की चीज़ें पढ़ेंगे probably. नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा थियोरी पार्ट ही होगा, मतलब जब तक हम पूरा थियोरी पार्ट कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लाइक डू द क्वेश्चंस, राइट. सो पहले मुझे वो कंप्लीट करना होगा. क्लियर? So children, thank you so much for watching. Bye bye, take care.